निकल, तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है, तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है, तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि लें परीक्षा तेरी, कि लें परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी, तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, Gautam Buddha, to keep the body तेरे वजूद की is a duty. Otherwise, we shall not be able to keep our mind strong and clear. A very good evening, our honorable guest, Professor Archana Chahal, Head of Department of Physical Education, University of Allahabad, Miss Z. Bikazi, President, Awadh Girls Degree College, Professor Nishi Pandey, Manager, Managing Committee, Awadh Girls Degree College, Dr. U. Chaturvedi, Principal, Awadh Girls Degree College, members of faculty, my fellow students and viewers. I, Senior Under Officer Nivedita Bajpayee, student of final year, welcome you all in today's lecture series organized by Department of Physical Education and National Cadet Corps of Awadh Girls Degree College on the occasion of International Yoga Day. I would now request Lieutenant Dr. Sarita Singh to introduce our eminent speaker and deliver her welcome address. Thank you, Nivedita. True yoga is not about the shape of your body, but the shape of your life. Yoga is not to be performed, it is to be lived. Yoga doesn't care about what you have been. It cares about the person you are becoming. Yoga is designed for a vast and profound purpose, and for it to be truly called yoga, its essence must be embodied. Our today's lecture, Yoga, a scientific way of quality life, is also related with this. Greetings to each one of you present here. I am extremely overwhelmed to get this opportunity to address you all on this occasion of celebration of International Yoga Day. On behalf of Awadh Girls Degree College,
I welcome our eminent speaker, Professor Archana Chahal, Head, Department of Physical Education, Central University of Allahabad. We are grateful you to ma'am for accepting our invitation. I am also welcome Dr. U. Chaturvedi, Principal, Awadh Girls Degree College, Member of Managing Committee, faculty members, and students. It's my pleasure to introduce our eminent speaker to our viewers. Professor Archana Chahal, Head Department of Physical Education, Central University of Allahabad, is a well-known lifestyle and motivational expert in the field of physical education and sports. She has been a unique blend of hard work and talent. She has completed all her undergraduate, postgraduate, and doctorate in philosophy with JRF from Banaras Hindu University with merit. She has also secured 2 distinct awards in 2-year regular coaching diploma in basketball and sports science from prestigious NSNIS Patiala. Apart from academic excellence, she has also been honored with university's The Best Athlete Award. She, as a keynote speaker, has chaired various sessions in national and international conferences, seminars, workshops, symposium, video talks, and etc. She has represented country in 12th International Commonwealth Sports Conference held at Manchester Metropolitan University of Manchester, United Kingdom, and visited Professor Tom Rayleigh's research lab, John Moore's Liverpool University, United Kingdom. She has worked in various capacities from time to time, such as an independent observer at National Anti-Doping Agency, NADA, and a special member of National Council of Educational Research and Training, NCERT. Recently, Professor Chahal has proved that age is just a number. She has secured 2nd place in national level cross-country event at the age of 45 years, just to motivate the masses and spread awareness. The contribution of Professor Chahal in the field of physical education and sports is exceptionally significant, yet a humble and an approachable person. We extend a hearty welcome to you, ma'am. Before we carry on with the lecture series, I would give my regard and appreciation to everyone, especially Dr. A. Hassan for technical support, Khushi Sachdeva for helping and managing everything as a co-convener, Nivedita Bajpai, Disha Kevlani, and Rupal to stand at every front and make this lecture series functional in such hard times. Without any further delay, I would like to start with the event. I wish this lecture enlighten us all and provide us with a new approach toward living a quality life rather than living just a life. Once again, welcome you, ma'am, and thank you so much for your valuable time. Thank you so much, ma'am. I would request all the participants to post their questions in the chat box. Now, I would request our speaker to proceed with her words. Over to you, ma'am. Attending a program. I'm attending a program. I would now request our speaker to proceed with her words. Over to you, ma'am. Professor Chahal, are you able to hear? Okay. Ma'am, kindly unmute yourself. Your mic is muted. I'm audible also? Yes, ma'am. Very good evening, Dr. Chahal, and thank you so much for accepting our invitation. Thank you. And I am Namaskar, ma'am. And I am also very much eager to listen your voice, your stays, to share my views also. Thank you. We are honored to have you here.
सरिता जी, Yes, ma'am. आपने कुछ कहा है क्या? हो सकता है मैं उस टाइम ऑडिबल नहीं होगा मेरे को. Okay, ma'am, we are actually requesting you to share your views on the particular topic. Okay, okay, okay. Now I start my. Okay. Yes, ma'am, No we are problem. waiting for that actually. Sorry. Hello, everyone. Especially who are the listeners, viewers. I am with you here to share my views on yoga, which is itself a great backbone, not only of our Indian culture. Even when we can say nowadays it is a boon for all the country globally, not in the form of the exercise. You just imagine whenever the exercise or sports or yogic activities are not there, how we can pass our time during that lockdown, and what did we do that time. So I want to give the brief elaboration of the brief but elaborated form of the yoga in a scientific manner. Why? Because it cannot be held in a few lines or few words. The yoga is this. Even surprisingly, whenever I go through all these treatises, I read one thing. There is no accurate mode of do the exercises in the form of yogic. It is not mentioned anywhere. This is the only, they have given the pose of the particular animal, particular thing, and after then they give the freedom to choose the exercise. Just feel and write. Do practice and write on this. How I can say this? Very important line it is, because whenever the Vedas are in the written form, and still today, from Vedas to our Nishid, Upanishad, and then come into the sutras. These sutras mentioned only the name, not given the particular type of do the things. So this is the biggest science behind this. What your body want to do, how to project your body. So with this background, firstly I express few, you can say there is no plagiarism. I have used the things, I have cited also, and this is the true presentation on which I have not received any type of funding. It is the first thing which I mention, because ethically any speaker must be respect to whom is the respect the pics, data, facts, references which is used in his or her presentation. So we go ahead. This is the topic of today's conversation. It is a maybe it is very good if it is communication. So what is this? This is the, anyone? Yoga is a way, scientific way, not only a simple way, scientific way of life. How we can say the yoga is a science in a very, very simple manner. Everyone knows the benefits of yoga. Anyone is there who don't know the benefits of yoga? All are there. But what is the meaning of yoga nowadays? It is quite different from the ancient period and the practical period, present period. So, as the Bhagavad Gita stated, very, very simple way, there are so many definitions, बहुत ही सारी आपको मिलेंगे, इतने सूत्र मिलेंगे जिनमें ये benefit इनके बारे में भी दिया है.
and even the one is a very important whenever we listen, the sarve bhavantu sukhina sarve santu niramaya sarve bhadrani pashyantu ma kaschit dukh bhag bhavet. अगर हमने सबके सुख की कामना की थी, अगर इंडियन कल्चर ऐसा था जिसकी स्टार्टिंग ही ये है तुम भी सुखी रहो मैं भी सुखी रहूं, अहम ब्रह्मास्मि तुम ब्रह्मास्मि, अगर इन दोनों को हम देखें कि तुम्हारे अंदर भी वही सब है जो मेरे अंदर है, तो क्या हम एक दूसरे को, खुद को स्वस्थ रखते हुए, अपनी फैमिली को हेल्दी फिट रखते हुए हम इस सोसाइटी के लिए कुछ सोच सकते हैं? इतनी बड़ी सोच जिसको हम, आप लोग सब जानते हैं, विश्व कल्याण वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, वो सब इसी के, इन्हीं सब सूत्रास के पीछे, इन्हीं सब मंत्रास, इन्हीं सब आपके जितने श्लोक हैं उनके साथ आप पढ़ने को आपको समय समय पर मिलता रहा है। तो योग के बारे में जो सबसे फेमस, ऐसे तो बहुत है, हो सकता है आपको कोई और बहुत पसंद हो, मैंने साइंस बैकग्राउंड की वजह से इसको सर्च आउट करने की कोशिश करी है कि योगा कर्मे से कौशलम, जो आपके काम को आपको कुशल बनाए। और साइंस क्या करता है? साइंस भी तो, अगर हम देखा जाए, हमारे किसी भी काम को, हमारे काम करने के तरीके को हम उसको क्या कर दें, स्किलफुल तरीके से हम प्रेजेंट करें। मे बी कम्युनिकेशन हो सकता है, मे बी मेरा बिहेवियर हो सकता है, मे बी कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्शन हो सकता है, मे बी माय पोस्चर। These all things are scientifically proved. How to sit on chair, how to stand nearby your wash basin, even how to lift your body, how to leave your bed. How? Because it is proven by the such scientific principles, theories and practicals. So just imagine 5000 साल पहले ऐसा क्या हुआ, और भी पहले हो सकता है, ये तो हमारे अनुमान है। हमने ये माना कि लगभग इतना टाइम हुआ होगा, हमने ये माना कि लगभग 3000 साल होने जा रहे हैं इस टाइप के उत्पत्ति को, कि जहां पर हमने उपनिषदों की बात करी है। तो ये कर्म को जिसने स्किलफुल बनाया, और साइंस को आप कहते हो, विज्ञान को आप कहते हो कि ये आज का दौर है, हमसे ज्यादा वैज्ञानिक कहीं कोई और तो नहीं था, और जिसको हमने वो प्रॉपर प्लेस नहीं दी है। तो योग के बारे में जो आज हम सब बातें करेंगे, ये बिल्कुल मेरे ख्याल से आप वो सोच के मत बैठिएगा कि मैं आकर एक सिंपल सा आपको योग के बारे में और उसके बेनिफिट्स और उसके आसन के बारे में बताना चाह रही हूँ। यू आर द पीपल, यू आर द ट्रूली फ्लैग होल्डर्स, यू आर द प्लेस होल्डर्स, यू आर द स्टेक होल्डर्स, जो इन बातों को, और यू शुड बी चेक, you should be verified with your stick of science कि हाँ ये सच भी कह रही है या नहीं कह रही है। बिकॉज साइंस यही तो बोलता है कि जो थ्योरी चल रही है उसको रिसर्च करो, री आंसर करो, क्वेश्चन करो और फिर री आंसर करो उसको। जब तक अगर ऐसा नहीं होगा तो साइंस तो उसी दिन होके खत्म हो जाएगा ना उस चीज का पर्टिकुलर। आप देखते हैं किसी दिन चाय के बेनिफिट्स आते हैं, किसी दिन चाय के डैश डैश डैश, और फिर अगले दिन उससे भी ज्यादा अच्छा आ जाएगा। तो व्हाट इज दिस? सो कहीं ना कहीं हमसे बड़े वैज्ञानिक, हमसे बड़े साइंटिस्ट उस समय थे, और आज हम यहाँ कुछ भी ना जानते हुए उसकी तुलना करने बैठ रहे हैं कि रियली योगा क्या एक साइंटिफिक फाउंडेशन, साइंटिफिक वे है या नहीं है। और लोगों को जिताना पड़ता है कि नहीं भाई देखो, और जाकर योगीज को ये प्रूव करना पड़ रहा है ना। मैं इसके एग्जांपल अभी दूंगी धीरे धीरे। थोड़ा सा मैंने एक चीज सरिता जी से मैं क्लियर नहीं कर पाई थी कि जो हमारी आज के व्यूअर्स होंगे तो वो स्टूडेंट ज्यादा होंगे कि कौन ज्यादा होंगे, तो मैंने इसलिए इसको बैलेंस करके चल रही हूँ बोलते हुए। अगर मुझे ये क्लियर होगा तो और अच्छा रहेगा। देन अगर हम बात करें योगा कह लीजिए, आप योग कह लीजिए, मैं लैंग्वेज में नहीं जाऊंगी। कहते हैं कि योग को बिल्कुल अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि लास्ट ब्रेथ भी मैं ऐसी ले सकूं, क्योंकि लास्ट तो होना है किसी को, आप योग हो चाहे साइंस हो, किसी से भी इस चीज को रोक नहीं पाएंगे। बट दोनों का एम एक है या होना चाहिए कि क्या हम ये जो ब्रेथ ले रहे हैं या ये जो हम जीवन जी रहे हैं,
ये वही है जो होना चाहिए। साइंस का एम भी तो यही है ना, आपकी लाइफ को इजी बनाना, आपके वर्किंग को अच्छा बनाना। और योग का भी यही है कि आपके कार्य कुशलता बढ़ाना, जो मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो आप बोलेंगे, क्योंकि योग सुनने और पढ़ने से ज्यादा करने की चीज है। और ये करी कैसे जाएगी, ये भी हम आगे जब जानेंगे। दूसरी तरफ अगर हम साइंस को लेके देख, व्हाट्स अबाउट द साइंस, अगर सारा कुछ जो भी कोई साइंस में हो रहा है वो एक तरह से ह्यूमन बीइंग के ही लिए हो रहा है, चाहे वो युद्ध के हथियार भी बन रहे हो, है ना, ऐसा ही है ना, उसी के लिए हो रहा है ना। तो जब उसी के लिए हो रहा है तो ये हमारी क्वालिटी लाइफ देना चाहिए ना, साइंस को देना चाहिए कि नहीं, क्वालिटी लाइफ देना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे, मैंने एक लाइन बोली कि साइंस वही होना चाहिए जो लाइफ ही नहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सके। क्या ऐसा हो रहा है, अभी हम कुछ बात करेंगे तब जानेंगे। उससे पहले एक दो स्लाइड है उनको मैं जरूर डिस्कस कर दूं थोड़ा थोड़ा। पर अल्टीमेट ऑफ साइंस व्हाट इज, हम देखते हैं देयर इज अ लिस्ट, वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर देयर, फोकस ऑन द नेचुरल वर्ल्ड, एम ऑफ एक्सप्लेन ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, या अगर हर बायोलॉजिकल साइंस का अपना एक एम है, अपने ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, ऐसे केमिस्ट्री के अपने हो सकते हैं। अगर हम साइंस को वहीं तक मान के चलते हैं तो व्हाट्स अबाउट द बिहेवियर साइंस, हाउ द साइंटिफिक कम्युनिटी इन्वॉल्व इन द ह्यूमन, ये सब हमें सोच के कहीं रखना पड़ेगा, है ना। ये हमने देख लिया। अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं साइंस के बारे में, साइंस ये कहती है कि इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, और समटाइम्स ड्रामेटिकली वी लिसन फ्यू थिंग्स। आप ध्यान दीजिएगा, जो मैं पीछे छोड़ के आई हूं ना, उसी को अब मैं लीड करूंगी यहाँ पर। इम्प्रूव अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्या रियली साइंस से हम अपनी लाइफ को की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं? सोचेंगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, गोल्डन लिटे। जैसे ही यूएस में गोल्डन लिटे का दौर आया, और इस बार प्रयागराज में जब लास्ट टाइम कुंभ लगा तो मैंने देखे डिफरेंट स्टॉल्स आए हुए थे गोल्डन लिटे के, है ना। लेकिन जब मम्मा हाथ में या दादी या नानी हाथ में हल्दी का दूध दे देती थी तो हम उनको ऐसे देखते थे, उस तिरछी नजर से देखते थे कि अरे इससे क्या हो रहा है, और वहां वैज्ञानिकता ढूंढते थे, इन्हें क्या पता। और वो वैज्ञानिकता हम अब एक गोल्डन लिटे में ढूंढ ले रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड इंडियन कल्चर, वो चाहे योग हो, वो चाहे हमारा व्याकरण हो, वो चाहे संस्कृत हो। ये तीन ही क्यों मैंने बोले थे कि ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर, क्योंकि जैसे आप बाहर के नाम लोगे ना तो ऑल आर वेरी मच सीरियस, अच्छा कुछ जरूर इंपॉर्टेंट का होगा। और जब दूसरा हमारे ऊपर स्टैंपिंग करता है तो हम उसको मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। व्हाट इज दिस? जब उन्होंने बोला, विलियमसन ने बोला, प्रोफेसर विलियमसन ने बोला कि वी आर ऑलवेज थैंकफुल, पूरा ह्यूमन, पूरा ये कायनात हमेशा थैंकफुल होगी उस इंडियन कल्चर की, उस इंडिया की, जिसको आज हम एक पाणिनि के व्याकरण, एक जो उसने आपको संस्कृत देववाणी दी, और तीसरा योग दिया। और हमारे यहाँ कब वापस जिंदा हो रहा है? जब फॉरेन में ये इतना ज्यादा कायाकल्प कर चुका, तब हमें याद आया अच्छा हमारे ही था, हम ही कर रहे हैं। और कर क्या रहे हैं, उसमें भी हम क्या कर रहे हैं उसको भी अभी हम देखेंगे। तो साइंस और योग को मैं बहुत ज्यादा डेफिनेशन वाइज नहीं जाना चाह रही हूँ, मैं उसके उस मर्म को टच करना चाह रही थी, और इसीलिए मैंने उसको साइंटिफिक वे बोला। ठीक है, योग क्या करता है फिर? इट इनेबल्स अस टू अडॉप्ट राइट थिंग्स, एटीट्यूड्स, even sometimes give the problem solving nature. Why? आप कहोगे ऐसे क्या सबके साथ होता है क्या? क्योंकि हम योग कर ही नहीं रहे हैं, हम तो आसन कर रहे हैं, which is the one aspect of yoga. This is the problem कि हम इस योग की इन चीजों को ये समझते हैं, अच्छा ये तो कोई योगीज के बारे में बात कर रहे हैं। What is this? कि प्रॉब्लम्स को टैकल, प्रॉब्लम तो आनी है, छोटी सी भी आनी है, बड़ी भी आनी है। गैस का सिलेंडर खत्म हुआ तो क्या बदलेगा नहीं? ये प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम मान लेंगे। जब मुझे चेंज करना नहीं आएगा, मुझे उसको, मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं होगी, उसको खींच नहीं पाऊंगी, मेरे लिए प्रॉब्लम है। और जब हम उसको कर लेते हैं, भाई जब तक बच्चा कब तक पूछे मम्मा ये क्वेश्चन टफ है क्या? कब तक? जब तक आपकी समझ में नहीं आ रहा।
जिस दिन आपको समझ में आ गया ये आंसर, आपके आंसर मिल गया आपको, आप करने लगे, आपके लिए इजी हो गया कि नहीं? ठीक है, तो इसी चीजों की थोड़ी सी फाउंडेशन मैंने देने की कोशिश करी है। और यहाँ मैं आपको उस क्वालिटी लाइफ की बात कर रही थी, जो साइंस की बात जो हम कर रहे थे, क्या ये रियली हमें क्वालिटी लाइफ दे रही है? व्हाट इज ह्यूमन? ह्यूमन अगर देखा जाए तो कॉम्बिनेशन इज अ ब्लेंड। बट आप कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो, कितने भी बड़े फिजियोलॉजिस्ट हो, कितने बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप राइटर हो, कुछ भी, आप कोई भी काम करोगे किससे? विद योर बॉडी। इस बॉडी से ही करना है, और इसी बॉडी को हमने कहीं पीछे छोड़ रखा है। इसी के लिए सब करना है। दलाई लामा जी ने ऐसे ही नहीं बोला। दलाई लामा जी से किसी ने पूछा कि भाई ये बताइए, क्या बताइए कि किसने आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसने प्रभावित किया, या किससे आपको सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ? उसने कहा मानव खुद। ये मानव वो है जो मशीन, क्योंकि लाइक मशीन है बट मशीन की तरह काम कर रहा है, नॉट ह्यूमन की तरह। उसके मूवमेंट तो मशीन की तरह है, कर रहा है। वो पूरा पैसा कमाना चाह रहा है, पैसा कमाने के लिए सारा जिद पड़ी हुई है, और वो पैसा जो उसने कमाया कुछ दिन बाद कहाँ पर लगाने वाला है? उसी बॉडी को बचाने के, क्योंकि उसने उसकी परवाह नहीं की। तो दिस इज द बिगेस्ट सरप्राइज टू मी। अब साइंस के साथ क्वालिटी लाइफ की बात करिए, यस बिल्कुल, इसका मतलब साइंस बंद नहीं होगी, ये मत चिंता करिए। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जो साइंस का एम था क्वालिटी लाइफ देने का, केवल लाइफ नहीं, क्वालिटी लाइफ का, वो कहाँ चला गया? वो तो हमने उन मशीनों के, उन अपने घर के गैजेट्स के रिमोट में बंद करके रख दिया। और रिमोट तो एक तरफ रख देते हैं, अब तो रिमोट का भी जमाना नहीं है। किस चीज का जमाना आ गया? अब तो मैं बस एक चैंटिंग करूंगा, मैं क्लैप करूंगा, मैं फ्लोर पे पैर रखूंगा, लाइट जल जाएगी। वो भी रखने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन बाद तो ये भी है। क्योंकि मैं को याद है जब मुरली मनोहर जोशी जी उद्घाटन करने आए थे ट्रिपल IIT में, 2002 या 3 की बात थी, तो वहां पर उन्होंने जब वो लैंपिंग करना था, तो वहां पर जब लैंपिंग लेट कर रहे थे, तो वहां कोई लाइट नहीं जलाई गई, कुछ नहीं किया गया, वहां केवल ओम का उच्चारण किया गया और वहां पर दीपक जल गया था, है ना? मतलब हमारी आंखों देखी घटना की बात को मैं इसलिए याद रखूंगी। और पहले हम लोग केवल पढ़ते थे ऐसा भी कभी होगा, तो यानी कि हाथ भी चलाने की जरूरत नहीं है। ये हुआ तो बहुत अच्छा है, साइंस ने तो बहुत अच्छा करा। यानी कि कुछ दिन बाद हम नींबू निचोड़ना भी भूल जाएंगे, कट करना भी भूल जाएंगे, और हमारे जिसके लिए मसल्स थे वो काम ही करना भूल जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर इतना लेथार्जिकनेस आ गया। क्वालिटी ऑफ लाइफ आजकल किससे देखा जाता है कि कितना ऐशो आराम हमारे पास, और जितना ऐशो आराम उतना हमने मिसयूज ऑफ एक तरह से साइंस का कर रहे हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक असेसमेंट के थ्रू हम बहुत सारे मेथड्स लगा के आप चेक करते हैं अपनी बॉडी को या अपनी मशीन्स को। मतलब आप किसी भी चीज को अगर देखना है कि साइंटिफिक है कि नहीं, तो आप ये सब असेसमेंट कर लेते हो कि भाई क्या क्या, जैसे साइकोलॉजिकल असेसमेंट देखोगे, सोशियोलॉजिकल देखोगे, फिजिकल फिजियोलॉजिकल देखोगे। पर आप किसी मशीन का यूज करोगे तो जरूरी नहीं आप स्पिरिचुअल कर पाओ, जरूरी नहीं आप फिलोसफिकल कर पाओ। तो जब हम इन चीजों का ब्लेंड देखते हैं, तो पूरा ब्लेंड ये साइंस के पास नहीं मिलता, बट किसके पास मिलता है? वो मिलता है हमें योग, या हम एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं। क्यों? लर्निंग बाय डूइंग। अगर ऐसा ना होता तो छोटा बच्चा सबसे ज्यादा करके ही सीख रहा है। आप कहते हो ना वो देख के सीख रहा है, बिल्कुल 95% वो देख के सीखता है, इसमें कोई शक नहीं है, अप टू द 5 to 6 years। बट देख रहा है कि हम ही सही कर रहे हैं। जब मैं वॉश मशीन को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रही, मेरा बैठने उठने का पोस्चर खुद का गलत है, तो उसने वही तो सीखा। ये हमें यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा हम कर क्या रहे हैं। देन अगर एक एग्जांपल, एक रिसर्च मैंने डाली, और दे हैव सो सरप्राइज, 1937 की रिसर्च इंडिया में, अर्ली 20 लोगों को तरफ से एक तरह से वेस्टर्न सोसाइटी को कन्विंस करने की कोशिश हो रही थी। वो क्या रहा था कि हमें प्रूव करना पड़ रहा था कि आज भी करना पड़ता है। अगर ये किसी और का रहा होता तो उसे प्रूव ना करना पड़ता, पर आपको करना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि हमने नहीं यूज किया ना, हम कर रहे होते तो किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं थी। तो उन्होंने एक रिसर्च करते हैं, और उन्होंने उज्जयी पर जब रिसर्च किया, उन्होंने कहा कि जो ब्रीदिंग 72 टाइम्स की थी 1 मिनट की,
वो 22 मिनट्स में 28 पर, कांट बिलीव इट। ये मेरी रिसर्च नहीं है, इसलिए मैंने कोई इंडियन रिसर्च नहीं डाली, चिंता नहीं करेंगे आप। व्हाट आई वांट टू से कि इतना फर्क पड़ा। और जब इसको उन्होंने कैसे चेक किया, उन्होंने पजल्स दिए, कलर्स दिए, मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट लगाए, और जिनके पास ये ब्रीथिंग यानी कूलनेस, स्टेडीनेस, कामनेस था थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ दिस आसनास और दिस पर्टिकुलर प्राणायाम, तो ये उनके सामने रिजल्ट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग उज्जई करने लगेंगे, इस पर्पज से मैंने नहीं दिया है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, और ये बिगेस्ट रिसर्च में से एक मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा और फिर आगे जाएंगे। जब हम ये सारी बात करेंगे तो हम कहीं ना कहीं हम लाइफ की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, हमने लाइफ को लाइफ स्टाइल ले लिया। लाइफ में स्टाइल चाहिए, व्हाट इज दैट लाइफ स्टाइल? सरिता जी, व्हाट इज लाइफ स्टाइल? व्हाट इज लाइफ स्टाइल? किसी से भी हम बात करें तो वो क्या बोलता है कि भाई जो सिंपल, जो हम देख रहे हैं कि किसी ना किसी की लाइफ में जो भी कोई जैसे जी रहा है, वो क्या कहते हैं, उस व्यक्ति का जीवन शैली है, वो उसकी लाइफ स्टाइल है। द वे इन विच अ पर्सन लिव्स, और वी कैन से लाइफ स्टाइल इंक्लूड्स अवर डेली रूटीन्स। हम जो डेली में जो भी कामकाज करते हैं, दिस इज कॉल्ड लाइफ स्टाइल। नाउ आई वांट टू आस्क वन थिंग ओनली, is the lifestyle is individual? अगर लाइफ स्टाइल इंडिविजुअल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, बट लाइफ स्टाइल इज नॉट इंडिविजुअल मैटर। जबकि हम लोग बड़े शान से कहते हैं इट्स माय लाइफ, बच्चे बोलते हैं इट्स माय लाइफ, इसमें मैं क्यों क्या करना है ये मैं जानूंगा। नो, इट इज नॉट इंडिविजुअल। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? सोच के देखें। अ वे ऑफ लिविंग इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड सोसाइटीज which they manifest in coping with their, सब मिलके एक फैमिली में मेरे लेट उठने से अगर बाकी मेंबर पे नुकसान हो रहा है, फर्क पड़ रहा है, एक चाय को बनने के लिए 3 बार बनना पड़ रहा है, एक बार मैं उठी, एक बार आप उठे, एक बार वो उठे, तो भैया ये आपने देखा कि एक ही काम, इकोनॉमिकली हम कितना पीछे जा रहे हैं केवल अपनी एक लाइफ स्टाइल से। आपका बेटा रात में लेट सोता है, सुबह जल्दी नहीं उठता, आपको क्यों प्रॉब्लम है? ये तो उसकी लाइफ है, बट कहीं प्रॉब्लम है, इसको पहचानना पड़ेगा हमको। तो लाइफ स्टाइल इज नॉट इंडिविजुअल मैटर, और इस इंडिविजुअल मैटर के नाम पर हमने मनचाही चीजें करी, मनचाही चीजों के नाम पर हमने अपने को बिल्कुल सोशली, मतलब कोई इमोशनली अपने आप को इन्वॉल्व रखने की भी कोशिश नहीं करते। जहां उनका मन करेगा वहां जाएंगे। जैसे अभी आप आजकल एक एड देख रहे हो, वो जैसे ही वहां जाना है, ताऊ जी के यहाँ शादी में जाना है, कहाँ जाना है, और वो लड़की तुरंत से बोलती है व्हाट इज दिस? दिस टाइप ऑफ सोसाइटी इज देयर। हमने खुद ही रिलेशंस को आपके कट कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको जाना है फ्रेंड के यहाँ तो वो सब ठीक हो जाएगा। तो दिस इज अ लाइफ स्टाइल। हाउ वी कैन चेक दिस, हाउ वी कैन channelize this whenever our brain gives the right messages or the things to us, okay? Then it almost 1/2 or all deaths previously done by the epidemics, just like corona. ये 100 साल पर आप देख रहे हैं, स्टडीज बता रही है लगभग जरूर रिपीट हो रहा है, बट हर बार तो कोरोना नहीं आ रहा था ना। तो कौन हमें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है? हमारी खुद की लाइफ स्टाइल। और दिस लाइफ स्टाइल बिकम नाउ HPKD. What is this HPKD? हाइपोकाइनेटिक डिसीज। और हम हाइपोकाइनेटिक डिसीज मतलब जब हम हाइपो मतलब हमने अपने मूवमेंट्स को मिनिमाइज कर लिया, और काइनेटिक मतलब मूवमेंट को मिनिमाइज कर लेना। मूवमेंट को मिनिमाइज करते ही हमारे सबसे ज्यादा कौन से इफेक्ट पड़े आपको पता है ना? अर्थराइटिस, शुगर की प्रॉब्लम, इवन न्यूरो की प्रॉब्लम, अल्जाइमर की प्रॉब्लम, मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब हमारे कम से कम। अब आप देखिए ना, आपको देखते हैं कि वॉक है, पावर वॉक करो, एरोबिक करो, योगा करो, पावर योगा करो, देयर इज अ वेरिएशन ऑफ योगा एंड देयर इज अ बोतल टाइट, एक जादू की छड़ी आ गई है कि ये कर लो हो जाएगा। तो ये योग नहीं है, ठीक है? फिर हम आगे बढ़ते हैं। इवन आज के समय पर तो जो हमारे परवर्स हैं, जो सेल्समैन है, उन्होंने, और उसको सेल्समैन का मतलब नहीं यहाँ पर बिजनेस ब्रांड जो बनते जा रहे हैं, उन्होंने हमारी लाइफ को कितना अनहेल्दी बनाया है। अनहेल्दी केवल फूड ही नहीं है, अनहेल्दी थिंकिंग जो हो गई। जैसे अगर आप 1-2 वर्ड सुनेंगे आपको बड़ा ताज्जुब लगेगा।
What is the GST food? What is GST? हाई सोडियम कंटेंट है वो सारे जिन्हें हम GST वर्ड से जान रहे हैं. दिस इज अ रिच फूड खाना है. व्हाट इज रिच? हाई सैचुरेटेड फैट. जैसे आपके पास्ता में आप ओवर क्रीम कर रहे हैं, आइसक्रीम में कर रहे हैं, एक्सेट्रा. बट इसको हमने फैशनेबल बना दिया और हम उसके उस जाल में फंसते चले जा रहे हैं. सेटिस्फाइंग. सिगरेट के लिए क्या बोलने लगे? स्मोकिंग के लिए इट्स वेरी सेटिस्फाइंग रूम फॉर मी लाइक दिस. अब क्या हो रहा है? और वी फॉरगेट QOL, क्वालिटी ऑफ लाइफ, या क्वालिटी लाइफ को हम कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे हैं. हमारा हेल्थ, कंफर्ट, हम हेल्थ और कंफर्ट को ध्यान में रखकर सारी चीजें कर रहे हैं और हेल्थ को वहीं कहीं ना कहीं वैनिश कर दे रहे हैं. सो आज के समय पर अगर हम योग को देखें तो ये लाइफ स्टाइल चल रही है और आप 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं. अगर हम 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं उसके साथ कैसे उसको लिंक अप करें, सोच के देखिए. बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए. क्यों डिफिकल्ट है? जनरल पॉपुलेशन क्या सोचती है योग के बारे में? आप लोग जो बैठे हैं इतने प्यार से सुन रहे हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता. एक तो ये जो सिस्टम आया ये साइंस की देन है, इतना बड़ा सिस्टम है और यही साइंस की देन है. सोचिए कि आज घर बैठकर आप योग, आप एक्सरसाइज सब कुछ कर पा रहे हैं. तो ये थी साइंस और उसको हम मिसयूज करेंगे तो वो कुछ और भी आप देख लेंगे. तो दिस इज द टाइम टू रियलाइजेशन. क्या रियलाइज करना है कि आपकी नजर में योग क्या है? आपकी नजर में योग 4-5 आसन किए, 2-3 प्राणायाम कर लिए और कुछ और अच्छे लोग हैं जो सुबह शाम भी कर रहे हैं और बाकी टाइम लाइफ का वही ढर्रे पर चल रहा है. वही खाना, अगर हम अनहेल्दी खा रहे हैं, अगर हम अनहेल्दी तरीके से पोस्चर बना रहे हैं और हम अनहेल्दी तरीके से अपना रिक्रिएशन या लेजर टाइम कर रहे हैं या स्टडीज कर रहे हैं. अनहेल्दी मतलब नॉट प्रॉपर सिटिंग. आपका पोस्चर का, आसन का मतलब ये था कि बस हमें अच्छे से करना है, बाकी समय पर हमें नहीं करना है. इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज समथिंग एल्स. क्या था वो? अगर आप देखें तो योग को कहां से आप सही समझेंगे? डिक्शनरी ढूंढते हैं, क्योंकि पुराने लोगों से तो एक्सपीरियंस शेयर करने में बहुत शर्म आती है ना हमको. तो हम डिक्शनरी खोल रहे हैं और डिक्शनरी में जब मैंने देखा और आई एम सरप्राइज्ड, और मैं इसको लिखकर लाई इसीलिए एज इट इज, मैंने तुरंत इसको देखा. योगा एक्सरसाइज वहां पर डिफाइंड है. कौन सही करेगा जनाब इसको? फिर से सुनिए. योगा इज एक्सरसाइज as defined by Merriam-Webster, a system of physical postures, breathing techniques, and sometimes meditation, derived from traditional yoga. This is the definition which is written in the world-class dictionary. क्या है ये? क्योंकि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं. हमारी डेफिनेशन को तोड़ फोड़ के कहीं रख दिया गया है और हम उसको फिर कोट करेंगे. मैं ही नहीं, आप सब करेंगे. तो इसीलिए मैं इसको लाई और वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर को यहाँ पे दिखाया गया. ये तो ह्यूमन, मतलब जब कहीं पर इतना क्या कहना चाहिए, आपकी चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे सिंधु घाटी, कितने भी हो, वो तक नहीं थे. ये उनसे पहले की चीजें आपको मिली, जहां पर तब कल्चर की बात छोड़िए, कोई वर्ड भी नहीं जानता था एजुकेशन. तब ये यहाँ सिस्टम चल रहा था. सो वी मस्ट बी रिस्पेक्ट आवर रूट्स. और रूट वो चीज होती है कि जरा सा कुछ होता है तो उसके पत्ते सीधे हिलते हैं. दिस इज द इफेक्ट ऑन आवर सोसाइटी. सो यू जस्ट क्लैरिफाई दिस डेफिनेशन. वेल, कोई बात नहीं, हम आगे बात करेंगे कि योग को फिर क्या योग हो सकता है. तो देयर इज द 4 पाथ ऑफ योगा बताए गए और 4 पाथ इतने साइंटिफिकली बताए गए हैं कि मुझे भी जब मैं जैसे से पढ़ती जाती हूँ मुझे बहुत मतलब आश्चर्य होता है कि मैं कितना कम जान रही हूँ. व्हाट इज दिस? पहला नहीं बोल सकते क्योंकि ये सब साइड बाय साइड चलते रहे. कर्म योगा की बात होती है. कर्म योगा में जो सबसे बड़ा नाम अगर इंडिया में निकल के आता है तो वो निकल के आता है. ऐसे तो नेल्सन मंडेला जी भी हैं, बाहर की बात करें, और भी विवेकानंद जी, दयानंद सरस्वती का, जिन्होंने अपने काम से ही अपना योग कर लिया. योग मतलब जुड़ गए. जुड़ किससे गए? सोसाइटी से, आपसे, हमसे, इनके लिए सब कुछ किया. कैसे किया? क्यों? कर्म योग से ऐसा क्यों है? कर्म का मतलब ये एक्टिव पाथ. एक्टिव पाथ का मतलब जिसमें आप वर्क हार्ड करेंगे फिजिकली और मेंटली बोथ. यानी कि ये ऐसे लोगों के लिए योग का रूप है
जो लोग बहुत एक्टिव टेम्परामेंट के होते हैं, यस आई वांट टू डू, जील होता है, जीस्ट होते हैं खूब ज्यादा, तो उनके लिए ये टर्म, उनके लिए ये वाला पाथ ऑफ योग बहुत अच्छा है और लोग कर भी रहे हैं। स्पेशली आप जो बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, जो बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत काम करते हैं, आप उनके लिए भी बोल सकते हैं, मतलब कर्म ही उनकी पहचान है। ठीक है, दूसरा पार्ट ऑफ योगा या पाथ ऑफ योगा, हम जन योगा की बात कर सकते हैं। जन योगा क्या है? जन योगा को हम जाने जो कहीं ना कहीं हमारी फिलॉसफी, दर्शन से जुड़ा हुआ है, और ये किन लोगों के लिए सूट करेगा? जिनका स्पिरिचुअल, जिनको दर्शन, जिनको तर्क, इस टाइप की चीजें हैं, वो इसमें ज्यादा अच्छे से फ्लरिश कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा भक्ति योग। भक्ति योग जो बहुत डिवोशनल, बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं, इमोशनल होते हैं, उनके लिए भक्ति योग की जगह। तभी तो मीरा जी को ये कहा जाता है ना, उनको सब जगह वही दिखते थे। तो ऐसा डिवोशनल रूप, तो ये योग के बहुत हाई लेवल की ये बात है तीनों जो मैंने कही। बट अब जो बताने जा रही हूँ, आप सोच के घबराइएगा नहीं। ये जो योग था राजयोग, राजयोग की अगर हम बात करें, राजयोग पता है किन के लिए था? जो इन तीनों के लिए सुटेबल ना, जो इन तीनों को नहीं कर पा रहे, मतलब लेस एबल टू डू, तो उनके लिए क्या करा गया कि भाई बॉडी के थ्रू आप परमात्मा के मिलन पर चले। बॉडी के थ्रू मतलब एक्शंस। एक्शंस का मतलब क्या था यहाँ पर? कौन से एक्शंस? साइंटिफिक एक्शंस, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज डिजाइन टू डू वर्क। तो यहाँ पर वो साइंटिफिक बात, वो वैज्ञानिक बात की बात की गई, जो हमारी छिपी हुई क्वालिटीज को बाहर ला सके। आप योग के थ्रू धीरे 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 धीरे, आप बताइए, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा लेते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा लेते हैं। यू कैन इंप्रूव योर मेमोरी इटसेल्फ। सोचिए, आप ऑटोजेनिक ट्रेनिंग उसमें कर रहे हैं ना, साइकोलॉजी में। अगर 1600-1700 ईस्वी की अगर साइकोलॉजी है, तो जरा सोचिए 5000 साल पहले क्या था। क्योंकि हमने खुद स्टैंपिंग नहीं करी, तभी हमारे पेटेंट लोग ले गए। हल्दी चली गई, नीम चला गया, और भी सब कुछ। कितनी मुश्किल से, आपको पता है ना, जस्ट अभी कुछ दिन पहले बासमती चावल का वो पेटेंट इंडिया को वापस हुआ है, नहीं तो वो भी पाकिस्तान को हो गया। यू आर द स्टेक होल्डर भाई, हमसे नहीं हुआ, हमारी भी गलती होगी, बट आप हैं। तो आपके लिए, आपके और हमारे लिए, क्योंकि हम लोग तो बहुत निम्न कोटि में आएंगे। निम्न कोटि मतलब इम्पावर नहीं है, इम्पावर इन द सेंस कि हम अपनी शक्तियों को नहीं पहचानते। जब हम अपनी शक्ति को नहीं पहचानते, तो यू मस्ट बी डू दिस साइंटिफिक पाथ, ब्रिंग आउट लेटेंट, छिपी हुई पोटेंशियल आपके अंदर जो है, वो इसके माध्यम से आप, केवल आसन इज नॉट योग, इसीलिए गलतफहमी सारी हो रही है। प्राणायाम इज नॉट अ योग, फिर क्या है? धन्य है हम लोग जो, मेरे ख्याल से बिल्कुल धन्य है कि जहां पर हमें इतना वेरिएशन, इतनी चीजें, सब कुछ है, और जहां पर हमारे लोग कह गए और आज उनके लिए बाहर में बुक्स लिखी जाती है, और उसमें भी तब हम उनको मानते हैं, क्योंकि हम तो संस्कृत जानेंगे नहीं। वो संस्कृत में स्पेशलिटीज कर कर आपके सूत्रास को लेके इंग्लिश में प्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज द थिंग जो हमें रियलाइज करना है। और अच्छी बात है, उन्होंने किया, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने हमें ही दिया, ये और अच्छी बात है, हम ले रहे हैं। लेकिन हमें क्या समझना है? तो देयर इज द राजयोग का जो सबसे ज्यादा चर्चित रूप है। अब राजयोग में भी अगर आप देखें तो दो रूप जो होते हैं वो हठयोग के हो जाते हैं, है ना। हठयोग की बात तो भाई देखिए, बहुत हट, आप बोलते हो क्या हटी हो तुम, बच्चे को बोलते हो ना बहुत हटीला है, व्हाट इज दिस हटीला? हमें अभी आप समझिएगा, देखिए क्यों ये वर्ड आया। देयर द 8 स्टेप्स ऑफ राजयोग, जिसको अष्टांग योग, है ना, महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग दिया, और अष्टांग योग में उन्होंने 8 स्टेप दिए, ये फर्स्ट 5 और 3 फिर। तो ये क्या है? फर्स्ट 5 क्यों मैंने किए? फर्स्ट 5 जो हमारे एक्सटर्नल स्टेप्स ऑफ अष्टांग योग है, या जिनको हम एक्सटर्नली करते हैं, और जो बाकी 3 जो है हमारे, वो इंटरनल अष्टांग योग के पार्ट है ना, बाह्य और आंतरिक। तो ये, अब ये ऐसे नहीं है कि आप इनमें से ये मैं कर लेता हूँ, ये मैं कर लेता हूँ, ये तू कर ले, ये वो कर लेगा, तो ना, ये स्टेप बाय स्टेप है। और यही डे टू डे में है। सबसे मजेदार क्या है, ये डे टू डे भी है, लाइफ लॉन्ग भी है, और ये हमें जीने का, इसलिए योग को जीवन शैली कहा गया। योग इज इटसेल्फ अ लाइफ स्टाइल, योग इज अ लाइफ। ऐसे ही नहीं वर्ड आया होगा, सोचिए क्यों। अगर जीना है तो अगर हम इन सिद्धांतों पर थोड़ा बहुत भी चल सकें,
थोड़ा बहुत भी इन स्टेप को फॉलो कर सके, और आप देखिएगा, यकीन मानिएगा, आज आप इस चीज को मानेंगे कि अगर हम यम की बात करें, पहले को अगर लें, पहले को अगर हम लेते हैं यम को, तो देखिए यम क्या कहता है। यम के 5 पार्ट है। यज्ञ एक तरह से हमारा क्या है, एब्सेंटिव्स है। और ये क्या कहता है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, एब्सेंटिव्स मतलब तटस्थ होना, किसी चीज के बारे में आपको बिल्कुल न्यूट्रल हो जाना, ये हमें सिखाता है। न्यूट्रल का मतलब क्या है, ज्यादा खुशी में खुश नहीं, ज्यादा दुख में दुखी नहीं। एक और चीज सिखाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, वॉट एवर इज द बेस्ट। जो आपको मिला ये आपको बेस्ट मिला, अब आपको अगर शिकायत है तो इसे और अच्छा आप करिए, क्योंकि आपको वो सब दिया है। आप जान के देखिए कितनों को ये भी नहीं मिला। यू आर ऑन द टॉप। आज आप इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, आप इस कॉलेज में क्या कहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आप कहीं पर कुछ हैं, आप कहीं पर कुछ हैं। आपसे और मुझसे भी अच्छे थे जो यहाँ नहीं आए, और मुझसे भी बेकार होंगे जो ऊपर भी हो गए। तो ये सब तटस्थ है, इसको तो आपको मानना। लेकिन अब इसको कैसे सुंदर बनाया जाए, यानी कि यू आर इन हेयर, यू आर हेयर, यू मस्ट बी प्रूव कि क्यों तुम यहाँ। तो ये इसके लिए उसने 5 चीजें बताई, जिसमें सबसे पहला था ट्रुथ, सच्चाई। सच्चाई को अब ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सच्चाई का मतलब क्या है, विजिट विच इज रियल, जो रियल है, जैसा है उसको एज इट इज स्वीकारना। आपको अच्छा लग रहा है तो वो सही है, और मुझे नहीं अच्छा लग रहा तो वो गलत हो गया। यही तो डेफिनेशन है ना सही और गलत की। लेकिन ट्रुथ ये नहीं कहता, जो सच है वो सच है, मतलब जो रियल है, जो सामने है, जो वास्तविक रूप में है। ठीक है, सामने का मतलब दूसरा मत ले लीजिएगा। दिस इज, हाँ, सेकंड वन इज नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा का मतलब यहाँ पे क्या था, नॉन वायलेंस का मतलब क्या है, नॉन वायलेंस केवल मारपीट से ही नहीं, इससे भी, मन से भी, आंख से भी, इससे लाना था। और हमने क्या सोच लिया, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ तो मैं अहिंसक हो गई, और वाणी मेरी इतनी कठोर है कि उससे भी ज्यादा गड़बड़। तो ये नहीं बोला उसने। तो उसने कहा कि आप राइट लिविंग को करने के लिए आप ट्रुथ को अपनाएंगे, रियलिटी को अपनाएंगे, नॉन वायलेंस रहेंगे, आप नॉन स्टीलिंग ऑफ कौन, केवल चीजों की चोरी नहीं, काम की चोरी, मन की चोरी। काम की चोरी कैसे, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा ये करने का, अंदर अंदर सोच रहे हैं नहीं ये पता नहीं कब होगा, कैसे होगा। तो ये सब भी नॉन स्टीलिंग में आएगा। ठीक है, और फिर क्या है, नॉन कॉवियतनेस। ये क्या बोला जिसने, तो बिल्कुल मतलब आप ये समझिए, इतना लोगों ने कहा सर्व, सेवा का भाव कैसे बना के रखें, कैसे रैशनल बने, और कैसे हम अपनी चीजों को आगे बढ़ाएं। इसके बाद 5वां है कंट्रोल ऑफ सेक्सुअल एनर्जी। यहाँ सेक्सुअल एनर्जी को कई बार हम लोग बिल्कुल दूसरे रूप में ले लेते हैं। ब्रह्मचर्य को अगर आप सुने, ब्रह्मचर्य मतलब जब जिस चीज का समय है वो करना, एक ब्रह्मचर्य। देखिए कितना बड़ा वर्ड है, ऐसे तभी तो ब्रह्म मुहूर्त आया है ना, कि अगर राइट टाइम आप राइट चीज कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपनी चीजों से बियॉन्ड जाकर चीजों पर जा रहे हो तो सब चीज में वो कहीं ना कहीं रिवर्स करता है। आपके हार्मोनल डिसबैलेंस, आपकी सोच के इम्बैलेंस, एंड आपकी प्योरिटी सबसे ज्यादा जो आपके आगे मिलेगी नियम में, उसमें आप जानेंगे। तो आप ये देखिए कि 5 चीज मिलके हमारे को क्या सिखाती हैं। अगर हम झूठ बोलेंगे तो समाज में हम कैसे होंगे, अगर हम नॉन वायलेंस होंगे हम समाज में कैसे हो जाएंगे, अगर हम नॉन स्टीलिंग करेंगे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, नॉन कॉवियतनेस होगा तो क्या होगा, और कंट्रोल ऑफ सेक्सुअल एनर्जी नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये 5 चीजें मिलकर 5000 साल पहले लोगों ने बता दिया था कि सोशल बिहेवियर डिसाइड करेंगे हमारा। तो इफ यू वांट टू बी अ गुड सिटीजन, गुड social animal, so you should be do the good social behavior with harmony and social control. Social control ये हमें यम सिखा रहे हैं। Then we come on ahead, blends of words in action, केवल बोलने से नहीं है, एक्शन में भी लाना है, तभी हमें एक और ऑफ पीस मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, देखिए चोरी तो कर ली, चोरी क्या कर ली, आज नहीं पढ़े, या मम्मा ने कहा काम पूरा हो गया, या मैम ने कहा था याद करके आना, नहीं आए तो चोरी तो हो गई। अब आपको पीस तो नहीं है, मैम पूछना नहीं, मुझसे ही ना पूछने। तो आपको अगर ऑरा ऑफ पीस चाहिए अपने लिए तो ये 5 चीजों को अपना लीजिए। आपकी आधी प्रॉब्लम तो साइंस नहीं दूर कर पा रही है जो ये कर रहा है, क्योंकि ये खुद एक साइंस है।
है कि नहीं है? तो साइंस को एक सब्जेक्ट के तौर पे मत लीजिएगा। फिर नियम्स आ गए। नियम्स क्या बता रहे हैं? नियमास, है ना? ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्वेशन आपकी क्या है, कैसे करते हैं। तो सबसे पहला है ऑस्टेरिटीज। क्या बोलता है कि आपके पास तप, रिगर होना, रिफ्रेन करना, आपको एक तरह से सीरियसनेस, किसी भी काम को करने के लिए तपी होना। तप का मतलब क्या, जंगल में चले जाएंगे? नहीं, जहां आप है वही जंगल है। वही जो भी काम आपको मिला है, आप उसको कितना मन लगा के कर रहे हैं, कितना तप के साथ कर रहे हैं, कितना हार्ड वर्क के साथ कर रहे हैं, ये आपका पहला नियम। दूसरा क्या हुआ? प्योरिटीज, कितना कितना ज्यादा क्लीनीनेस, और इसको बल्कि हम ये कह सकते हैं कितना ज्यादा हम इसको फिजिकली और मेंटली इन्वॉल्व होकर अपनी क्वालिटीज को डेवलप करना प्योरिटी को आता है, इवन समटाइम विच इज नॉट मैसी। इसीलिए कहा जाता है ना, साफ सुथरे होकर आपका मन ज्यादा लगेगा ना उस काम में। आप अपनी टेबल को साफ सुथरा करके रखिए। आपके पास टेबल भी नहीं, आप जहां भी पढ़ रहे हैं अपनी कॉपी किताब को साफ रखिए, आप अपनी कॉपी को बंद करिए, उसका कवर सही रखिए, है ना? ऐसे ही आप कपड़ा जो पहन रहे हैं, आप नया पहनो ना पहनो, साफ सुथरा, ठीक? तो ये इसकी बात, तो ये जीवन शैली हुई ना, ये सारी बातें आप सोच के देखिए, यही तो हम करते हैं, बट हम कहीं ना कहीं अपने आप को मैसी बनाते हैं। इसके बाद कंटेनमेंट, ये क्या है? हमने कोई भी काम जो किया है, अगर हम सेटिस्फाई होके नहीं कर रहे, अगर हम सेटिस्फेक्शन नहीं ले रहे, सेटिस्फेक्शन ऑफ व्हाट, बस कर लिया, बंद हो गया, भूल गए, नहीं, आपको यहाँ पर बायो फीडबैक भी लेना है अपने आप को। यस, इसे करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसे करके बहुत अच्छा लगा, तो मैं आगे इसकी गुणवत्ता और बढ़ाऊंगा, इसकी क्वालिटी को और इम्प्रूव करूंगा। देन स्टडी। स्टडी का मतलब क्या? किताब पढ़ के रख दी। स्टडी का मतलब है स्व अध्याय, मनन। जो पढ़ा इसको पहले मनन में करेंगे, तभी तो मनसा वाचा कर्मणा में उसको लाएंगे। बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। और हाँ सुनो, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सुनो, रोज में इतना पढ़ना चाहिए। तो करना क्या है? जैसे फलानी पिक्चर आ रही है, मूवी आ रही है, फटाक से बैठ के भूल गए सब, है ना? या ये नहीं खाना चाहिए, अब आज मौसम बहुत अच्छा है, समोसा खाना है, तो इसका मतलब कि बिल्कुल समोसे की दुकान बंद नहीं हो जाएगी। आपको उसके परिप्रेक्ष्य में चीजें भी करनी है, यानी आपको अपनी बॉडी को उतना एनर्जेटिक बना के रखना है कि आपको अगर मनपसंद खाने का भी मन है तो आप उसको यूटिलाइज कर सको। देन सरेंडर ऑफ द ईगो, सरेंडर ऑफ द ईगो इन फ्रंट ऑफ द गॉड। और वो आप सच्चे मन से तभी कर सकते हो जब आपने बाकी चीजें ये यम से करते हुए आप नियम में। अब प्योरिटी की बात पर मैं जरूर बोलती हूँ, राइट टाइम। इंडियंस के बारे में तो फेमस भी है कब्ज की शिकायत। तो जब सुबह जल्दी उठेंगे नहीं तो शौच क्रिया जल्दी नहीं होगी। जब वो दिन भर आप उसमें डिस्टर्ब रहोगे तो बाकी चीजें आप कैसे कर लोगे? ये चीज कैसे जीवन जीना है, यही तो बताया है। देखिए आप जरा, तो टू कंट्रोल योर ओन बिहेवियर एंड बिल्ड योर कैरेक्टर इफ यू वांट। वो सोशल से था, ठीक? ये किसको डेवलप कर रहा है? आपके ओन कैरेक्टर को, ओन डेवलपमेंट। वो कर वो भी आप ही रहे हो, लेकिन वो सोशल एक तरह से रिफ्रेनमेंट दिया गया, ठीक है? फिर आता है कि इसके थ्रू आप रिफाइन होते हैं, इसके थ्रू आप क्लियर होते हैं, क्लैरिटी आती है आपकी बातचीत में, सोच में, जॉय मिलता है, फ्रीडम फील होती है, और आप हार्मोनी फील करते हैं, ठीक है? फिर हम थोड़ा सा और आसनास की तरफ चलें, जिसको कि सबसे ज्यादा लोग सुनना पसंद करते हैं। आसनास का एक सिंपल सा मीनिंग अगर आप देखें तो क्या होता है? स्टेडी पोज। और आसन दो चीजों के लिए जनरली किए जाते हैं, तो इम्प्रूव योर फ्लेक्सिबिलिटी, और फ्लेक्सिबिलिटी जो आपको सामने दिख रही है यही नहीं, आपकी इनर सोल की भी। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, जो आपके एफरेंट और इफरेंट नर्व्स हैं, इनके भी सिग्नल्स फास्ट होते हैं। ये जल्दी मैसेज लाएंगे, जल्दी लेके जाएंगे, है ना? और आपको क्या देंगे? एक फ्लेक्सिबिलिटी की जो जैसे लोग ये कहते हैं ना कि फ्लेक्सिबल होना, फ्लेक्सिबल ऑफ व्हाट? मसल्स का जो कंटेंट है, जो आपके मसल टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, है ना, इन सब के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, तो आपको काम करने में थोड़ा आसानी होती है। दूसरा क्या एम होता है आसनास का? एक तो हो गया आपको फ्लेक्सिबिलिटी का, एक होता है ध्यान लगाने में, मेडिटेट करने में, या कोई काम करने में अपने आप को स्थिर बना के रखना, स्थायित्व देना। तो पोज का मतलब यहाँ स्थायित्वता से था, ठीक? तो ये स्थायित्वता के लिए हमने क्या माना? बस आसन कर लिया, योग हो गया। शायद आज आप समझे हो कि योग का मतलब केवल आसन नहीं है, आगे प्राणायाम को भी मैं भी लूंगी, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब क्योंकि ह्यूमन बॉडी, क्योंकि ये दिख रहा है, फिजिकल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो एक तरह से आप देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पोस्चर इन डे टू डे लाइफ,
ये फिर हमें धीरे धीरे करेक्ट करने में स्ट्रेंथनिंग भी मिलती है, उनको करने की आपको चीज भी आती है, और आपका एक राइट पोस्चर से मैं बार बार क्यों फोकस कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ योर स्पाइन एंड योर वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर आपकी स्पाइनल है, सारे स्पाइनल नर्व्स है। अगर ये इधर से उधर होते हैं, क्योंकि आपका दो तरह से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों काम कर रहे हैं, और ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होके जा रहे हैं, तो आपको ये स्ट्रेट रखना है, पोस्चर से भी ध्यान रखना है, और केवल खड़े होने बैठने में ही नहीं, किसी भी काम। ठीक है, तो और क्या देते हैं ये हमको, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देते हैं, हमारे सर्कुलेशन को फास्ट करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, न्यूरो सिस्टम, न्यूरोमस्कुलर और न्यूरो दोनों के लिए हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, इसके अलावा बायोमैकेनिकली साउंड, अगर जॉइंट का काम कैसे होना है, लिगामेंट्स, अगर हम थोड़े से, आपने पैर ज्यादा टेढ़ा कर लिया तो आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आपकी अगर फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी आप इंजरी से बचे रहेंगे। तो बायोमैकेनिकली यू मस्ट बी साउंड बाय द आसनास एंड द मेंटल एंड स्पिरिचुअल। आप सच बताइए, जिस दिन आप कोई आसन जब तक नहीं जानते, जब आप उसको सही करने लगते हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगते हो, अभ्यासम कौशलम, है ना, जब आप अभ्यास करते करते उसमें अच्छे कुशल हो जाते हो, तो आपको कैसा फील होता है ना, आई कैन डू इट, ये तो मैं तो इतना, मेरी तो इतनी भी नहीं कर पाता था, मैं ये आसन भी करने लगा। लेकिन ये मैंने क्या बोला फर्स्ट टाइम में, कि करने से होगा, सुनने से अच्छा लग सकता है, सुनाने में भी अच्छा लग सकता है, पर जो करके सीखने और सुनाने का मजा है वो अलग। ठीक है, तो टू मेक स्ट्रॉन्ग ऑलराउंड, सब तरफ से, ठीक है, आपको बनाते हैं, एंड स्टडी नॉट डिट्यूरेट, आपको डिट्यूरेट नहीं होने देते। देखिए, स्थायित्व और रुक जाना दोनों में ये अंतर, अगर पानी रुक गया, है ना, पानी रुक गया तो काई आ जाएगी। रुकना नहीं सिखा रहे हैं आपको, मूवमेंट सिखा रहे हैं, बट स्टेडीनेस। ठीक है, तो दीज आर द पोज। नाउ द प्राणायाम। प्राणायाम क्या कहता है, कंट्रोल ऑफ वाइटल एनर्जी, है ना, या प्राणों को आयाम देना। प्राणों को आयाम देना मतलब प्राणों को स्थान देना। प्राण क्या है, हमारा वायु का आना जाना। अगर हमने इसके आयाम, इसका स्कोप अगर हमने बढ़ा दिया, जो अभी आपने देखा 22, है ना, जब आप भस्त्रिका करते हो या आप कपालभाति करते हो, गिनते हो ना, या हाउ टू होल्ड योर दिस वन ब्रेथ, आप कितनी रोक पाते हो, आप कितने टेस्ट भी पीछे आए हुए थे, तो आपको कितनी खुशी, अरे मेरे तो 1 मिनट रुक रही है, अरे मेरे तो 120 हो गया, धीरे धीरे मैंने उसको धीरे धीरे इंप्रूव करते गए। यस, यू कैन इंप्रूव। तो कंट्रोल ऑफ वाइटल एनर्जी, और ये जो है यानी प्राणों को आयाम देना, प्राणों को स्थान देना, उनकी जगह बढ़ाना। और जब हम ये कर लेंगे तो आप जरा सोच के देखिए, जो हमारा हार्ट को बार बार जो पंप करना पड़ रहा है, वो कम, यानी कि एक तरह से जो एक एथलीट हार्ट होता है, जैसे कार्ल लुइस का है ना, कितना बताया जाता है 45 के आसपास उसका हार्ट बीट रहता है, तो उसके हार्ट को कम काम करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, और ज्यादा डीप ब्रीथ होने से आपको काम एंड कूल, और आप उस काम में ज्यादा मन लगा पाएंगे। आप सोच के देखिए, 100 मीटर के स्टार्ट में पहले तो रूल था कि 2 बार फॉल्स स्टार्ट, अभी तो अगर सेकंड आया तो आउट सीधे, साल भर 4 साल की ओलंपिक की तैयारी सब खत्म, वैनिश हो जाएगी। सोचिए कितना स्टेडीनेस उनको रखना होता है। ठीक है, तो क्लीन करता है और नरिश, एक तरह से हम प्राणायाम से अपने आप को बहुत नरिश फील करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा कैरी होने लगती है। जब ऑक्सीजन ज्यादा कैरी होगी तो नेचुरल, और उसके लिए ब्लड को मूव ज्यादा करना पड़ेगा, तो अपने सारे ऑर्गन्स को अपना अपना काम फास्ट करना पड़ेगा। और यहीं पर मैं मसल हाइपरट्रॉफी की भी बात करता हूँ, आपके अंदर मसल हाइपरट्रॉफी डेवलप होती है। मसल हाइपरट्रॉफी हार्ट की भी, यानी हार्ट यानी कार्डियक मसल्स की भी, और मस्कुलर मसल्स की भी। ठीक है, दोनों हाइपरट्रॉफी में भी 2 चीजें, नंबर ऑफ सेल्स इंप्रूव होते हैं, बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं, एंड द साइज ऑफ द सेल इज आल्सो इंक्रीज। और दोनों चीजें जब बढ़ रही हैं तो नेचुरल है कि हमारी ऑक्सीजन कैरी करने की जब ये बढ़ेगी तो क्लीनिंग भी ज्यादा होगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा बाहर जाएगी। ठीक है, तो दिस इज फ्री फ्रॉम ओबेसिटी, हमें स्थूलता से बचाता है, फीलिंग ऑफ लाइटनेस हमें देता है, एंड इसके बाद चैनलाइज अवर प्राणा, हमारे प्राणों को, हमारी वायु को, हमारे जो सांसें हैं, श्वास है, इनको भी चैनलाइज करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दोनों। और आसन और प्राणायाम ही हठ योग का एक प्रारंभिक स्तर यहीं से शुरू होता है। हठ योग, जो हठी, जो सन्यासी, जो संत हठ करते हैं, वो एक पोस्चर बना लेते हैं। आपने सुना होगा कि एक बाबा है वो ऐसे करके ही रहते हैं, या ये है, इसलिए बच्चे को देखो कितना हठी है, इसलिए वो बढ़ जाता है। ठीक है,
पांचवा आता है प्रत्याहार। अब प्रत्याहार की अगर बात करें तो आप कहेंगे कि हर चीज कंट्रोल ही सिखा रहा है योग। मेरे ख्याल से बड़ा हमने इसको बहुत जल्दबाजी में अपने आप से डिफाइन कर लिया। हमने कैसे डिफाइन कर लिया अगर पता, ये एक तरह का क्या कहना चाहिए आपको, वो पावर देता है हाउ टू प्रॉपर यूटिलाइज योर सेंसेस। जबकि बुक्स में कंट्रोल वर्ड मिलता है, मैं भी शायद कंट्रोल ही लिखी होंगी, बट मैं उसको एक्सप्लेन किस वे में करना चाह रही हूँ और क्यों करना चाह रही हूँ कि देखिए, जो आपके सेंसेस को विड्रॉल कराए, विड्रॉल का मतलब क्या, सब चीजों से हट जाए, संन्यास ले लें, नहीं, यहाँ ये मीनिंग नहीं है इसका। सेंसेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, आप किसी चीज से अपने आप को क्या अच्छा दे सकते हैं, ये इसी से हमें अच्छा देखना है, उसी चीज में हमको उसकी कमी नजर आने लगती है। तो जो आसन और प्राणायाम से छूटा, उसने क्या कहा कि आप सीधे सीधे विड्रॉल ऑफ सेंसेस, जहां आप पर क्या करना है, संतोष, जहां आप ये फील करने लगे कि इट इज इनफ टू मी और नॉट। क्या मैं जिस जगह बैठा हूं, मैंने उस जगह बैठकर सोसाइटी को अपना बेस्ट देने की कोशिश की है? क्या मैं दे सकता हूं? क्या मैं उस जागृत अवस्था में हूं? आई कैन मोटिवेट माई सेल्फ फर्स्ट एज अ टीचर ऑल्सो। मैंने फिर बोला आपको कि वॉट एवर इज द बेस्ट, विच इज द बेस्ट विच आई फाउंड, जो मुझे मिला। और इसके साथ तो मैंने जस्टिस किया नहीं, ये भी मिल जाता, ये भी मिल जाता, ये भी मिल जाता, कि रट पे हम क्या है, बहुत कुछ खोते चले गए। और ये जो खोना हुआ, इसने हमारी कामनेस को बहुत दूर किया, और ये हमारी कॉन्शियस के खिलाफ था, तब भी हमने वो काम किया। तो आपको अगर कूल रहना है, देखिए एक ये भी कहा जाता है, आप कहोगे ना विड्रॉल ऑफ सेंसेस कैसे होता है। देखिए, हर किसी की लाइफ में अप डाउन आते हैं, अप डाउन जरूर आते रहते हैं, लेकिन आपको अगर आप उनके साथ कैसे विड्रॉल करते हैं, देखिए जरा, कि अगर मेरे को गुस्सा ही आ गया, तो सामने वाला यही तो चाहता था ना कि गुस्सा होकर आपको डिस्टर्ब हो जाए, आपने वो नहीं किया, क्या ये आपकी जीत नहीं है? यस। और इससे जो टाइम को आपने और अच्छे के लिए यूटिलाइज किया, आपने अपने और पेपर लिखे, आपने अपनी और चीजों को आगे बढ़ाया, तो शायद आपको वो एक सेटिस्फेक्शन भी देते हैं, कामनेस भी देते हैं, और सबसे बड़ी बात आपके अंदर एक पेशेंस लाते हैं, क्योंकि जो जिसका है वो उसके पास रहेगा। आपको जो मिला उसको आपको इंप्रूव करने का मौका कौन देते हैं? आपके विड्रॉल ऑफ सेंस। तो जब तक ये आपके कंट्रोल में नहीं होंगे, आप इनको चैनलाइज नहीं करेंगे, आपका मन भटकता रहेगा, चंचल होता रहेगा। चंचलता बहुत समय बहुत जरूरी है, बट किस समय करनी है यही तो सेंसेस बताएंगी। बच्चे के साथ जब आपको खेलना है तो कैसे खेलना है? ऐसे खेलोगे? नहीं नहीं ये नहीं करना है, नहीं नहीं हंसो मत ज्यादा, नहीं नहीं नहीं। बच्चे के साथ कैसे करना है? जैसे वो कर रहा है वैसे करना है, तभी तो वो एंजॉय करेगा, और उसका जब वो खुश होगा तो वो आपको खुशी देगा। तो कंट्रोल नहीं है, वो विड्रॉल ऑफ सेंसेस है, कि उनकी तरफ से कैसे मन को, यानी प्रॉपर यूज करते हुए उनको बहकने नहीं देना। तो विड्रॉल फ्रॉम, समोसे सामने है, कैसे रोकना है? खा लीजिए, बट डबल जाके काम कर लेंगे अगर आपको ऐसा फीलिंग है। बट अगर मना किया हुआ है तो आप तब भी तो रुकोगे ना, और नहीं रुकोगे तो आप झेलोगे। तो आपको अपने समझाने का जो एटीट्यूड है, आपको जो अपने को समझना और समझाने का जो तरीका देता है, वो देते हैं हमारे अगर अष्टांग योग के हम सारे पार्ट देखते चले आ रहे हैं। मैंने योग को उस फॉर्म में ला ही नहीं रही हूँ, मैं उस फॉर्म में देना चाह रही हूँ कि जो आप आज के प्रेजेंट टाइम में कर सकें। प्रेजेंट हमारी लाइफ स्टाइल बहुत ट्रिकी है, उसमें कैसे हम अच्छा कर सकें। ठीक है, धारणा, ये बहुत ही पसंद है मुझे धारणा को। यानी कि जैसे गांधी जी ने भी कहा था, मैंने कल के लेक्चर में भी ये चीज बोली थी कहीं, उन्होंने कहा था कि भाई कोई माँ आती है कि मेरा बेटा चीनी बहुत खाता है, ये वो है, तो इसको जरा आप समझा दीजिए। उन्होंने उसे 15 दिन बाद बुलाया, 15 दिन बाद आके सीधी सी एक लाइन बोल दी कि भाई बेटा चीनी मत खाए। क्यों? क्योंकि मैं तब ना बोलूंगा जब मैंने खुद ने धारण किया हुआ, मैंने तो वही करता था, मैं वही करता था, तो मैं कैसे रोक दूं? पहले मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, अपनी एनर्जी को चैनलाइज किया। जैसे मैं अभी चीनी के ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल यही दे दूं, बहुत मन करता है बहुत बच्चों का चीनी गुड़ ये सब खाने का, है ना, होता है ना, और मीठा खाने का मन कर रहा है, टॉफी। हम चैनलाइज कैसे करें? यू कैन बिलीव इट, गुड़ की छोटी छोटी हम मिठाई बनाकर आप रैप कर दीजिए उसे कलर पेपर,
और रख दीजिए फ्रिज के अंदर, और फ्रिज में से निकाल के दीजिए, बच्चा बड़ा खुश है। आप अंजीर है, आप छुआरे हैं, किसी भी फॉर्म में आप उसको मीठा देना शुरू करिए। देखिए मना करना बहुत आसान है कि ये नहीं खाना, क्या खाए? जो उसकी वो जो कंट्रोलिंग ऑफ सेंसेस है ना, उसको कैसे वो कंट्रोल करे। तो ये जो चैनलाइज करना है, ये हम काम एंड कूल होके सोच सकते हैं, नहीं तो दे इधर और दे उधर, बस यही रह जाता है। ठीक है, तो धारणा जो हमें क्या करता है, कंसंट्रेशन देता है, जो हमें कहीं ना कहीं विवश करता है कि हम चीजों को ध्यान दें। परसेप्शन को इंप्रूव करना, परसेप्शन को इंप्रूव करेंगे तो परसेप्शन को इंप्रूव कौन कराएगा? हमारे सेंसेस। क्योंकि कहाँ से आएगा परसेप्शन? या तो हम देख के करते हैं, सुन के करते हैं, छू के करते हैं, महक के करते हैं, है ना। तो देखिए हर चीज एक दूसरे से लिंक थी, और मुझे बड़ा सैल्यूट करती हूँ मैं वो 5000 साल 3000 साल जो भी था, कि उन लोगों ने ये डेवलप किया, और आज हम उसका सुख उठाना भी नहीं चाहते, हमने उसको कहीं विस्मृत कर रखा है। तो वी शुड बी फॉलो दीज थिंग्स इन प्रॉपर वे। मैं नहीं कह सकती, कंप्लीट नहीं कह सकती, आपका जो भी ऑप्टिमम आप कर सकते हो। ठीक है, टू सी द इनर वर्ल्ड, कंसंट्रेशन का यही है कि हमेशा अगर ऐसा नहीं होता तो हमें ये सेंस नहीं मिलता किसी भी कीमत पर कि जो हमें बहुत अच्छा लगता है आपको बहुत बुरा लगता है, और जो आपको बहुत बुरा लगता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए इनर वर्ल्ड की कॉन्शियस को हमें सुनना है, और मनसा वाचा कर्मणा से हमें चीजों को आगे ले जाना है। अब आप में से कौन नहीं चाहता कि मैं फिट दिखूं, मैं अपनी वो पुरानी वाली टी शर्ट पहन लूं, मेरा जो शादी का जो जोड़ा था वो भी अब तो आता नहीं, क्या करूं? बिल्कुल ठीक है ना, मन में आता है, करते क्या है इसके लिए? कितना कितना डाइट को, कितना एक्सरसाइज को, या और भी चीजों को हम फॉलो करते हैं। तो मन से, वचन से, कर्मों से हम बिल्कुल 3 अलग अलग रूपों में भागे रहते हैं। इसको हमें देखना चाहिए। वेल टाइम हो रहा है, मैं इसको थोड़ा जल्दी करूं। ध्यान, और ध्यान देने के लिए मेडिटेशन। अब देखिए आपने उस डेफिनेशन में देखा कि कभी कभी मेडिटेशन इज नॉट अ डू द थिंग्स ओनली अ पर्टिकुलर टाइम। मेडिटेशन तो एक ऐसी पावर है कि आप कहीं पर भी किसी भी समय अपने बारे में सोचो। जब आपको ये मन ने कह दिया आज तूने सही नहीं करा, आज तूने सही करा, यही तो रियलाइजेशन था, यही मेडिटेशन था। क्या जरूरी है मैं योगी की तरह ही यहाँ पर योग लगाकर ही बैठूं, जिसको आप लोग बोलते हो? नहीं, मेरे कर्म, आपने कर्म योग की बात सुन ली थी, आपके चीजें, आपके एक्शंस आपको सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं। और एक्सरसाइज और योग में कैसे कराते हैं सेल्फ रियलाइजेशन? यू जस्ट फील दैट आसन, आप उसी समय मेडिटेशन कर लोगे। मेडिटेशन का मतलब जो बार बार लोग ये बोलते हैं नहीं हमारे मन में बहुत विचार आते हैं जब हम मेडिटेट करते हैं, और हमेशा ऐसा आता है वैसा ध्यान आता है, ये कहते हैं। तो आप मत करिए उस समय, आप कहाँ से शुरू करिए? जब आपके सारे सेंसेस ओपन है ना, आप तब भी कर सकते हैं। आप अगर मेरे ख्याल से, चलो हलासन ले लेते हैं, या हम वज्रासन ले लेते हैं। जब भी आप कर रहे हो, कोई भी आसन कर रहे हो, आप उसको फील करो। नाउ माई बॉडी इज फोल्ड हियर, my stomach is little bit inside, I control my rectus, now release। आप उसी टाइम से कर, आप देखेंगे धीरे धीरे जब आप अपने आप से यहाँ बात करना, अपने बॉडी को फील करना शुरू कर देंगे, आपका मेडिटेशन का स्टेप, पहला स्टेप, हाउ टू अवॉइड द सीन जो आते हैं डिस्टर्ब करने, उनको आप करने लगोगे। तो आई फील कि दिस इज द राइट वे, कि सेल्फ रियलाइजेशन से ही आपको शुरू करना, सेल्फ रियलाइजेशन पे ही मेडिटेशन खत्म होता है। ठीक है, तो फुल्ली इन्वॉल्व होना पड़ेगा उसके लिए। और समाधि जो लास्ट, जो इनर पार्ट है हमारा अष्टांग योग का, लास्ट समाधि का मतलब यहाँ पर क्या, सम, मेरी नजर में तो जहाँ 0 से शुरू हुई 0 पे आए, तो फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं, भगवान ने दिया है जन्म, भगवान ले लेगा। बिल्कुल सही है, किसी के ऊपर बोझ मत बन के जाइए ना। फिर आपकी सेवा करने के लिए किसी को, आप अनहेल्दी रहोगे। आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो, सबसे पहले आप खुद को फिट रखिए, तभी आप उनको टाइम दे पाओगे, उनको फिट रख पाओगे, उनकी केयर कर पाओगे। तो समाधि को तो मैं यहाँ ये मान के चलती हूँ, जब हम सब इक्वलेंसी ऑफ द थिंग्स, हाउ द इक्वलेंसी ऑफ द थिंग्स, जब सब कोई अपना अपना काम बराबर मिल बांट के कर ले। आज के समय में कैसे, जरा सोच के देखिए, कैसी इक्वलेंसी की बात हम करते हैं? सम आधी, जहां सब कुछ बराबर। आपको इसके लिए जाने की जरूरत नहीं है, कोई समाधि बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
So to give your best to your society, this is the ultimate truth which is given by the, और that's why I am thinking कि समाधि वर्ड क्यों हुआ होगा. समाधि का मतलब तो ये था कि पोज लगा के आप बैठ गए, जैसे बौद्ध धर्म में भी आप बात करिए, कहीं कहीं भी बात करिए, लेकिन बाद में लोगों ने उसके ऊपर एक समाधि का रूप दे दिया, स्टेबिलिटी दे दी. तो इसका मतलब क्या था कि वो अपना बेस्ट दे के गया और वो इस फॉर्म को प्राप्त किया. So your human body, it is starting from zero to come on the zero. Yoga gives the base for the healthy and energetic life. Why? Because human body is made to do the work. And if you are not healthy or fit, you are the sure burden to your family also. Even you cannot enjoy your each and every moment of your life. आपके पास सब कुछ है, नहीं तो अंबानी को भी क्या जरूरत है ना फिट रहने की, सब कुछ तो है. अनिल अंबानी को 12 किलोमीटर बीच पे रनिंग करने की क्या जरूरत है वीकेंड पर? व्हाट्स नीड? तो जस्ट थिंक अबाउट दिस, है ना. द ह्यूमन बॉडी को मत भूलिए कि ये बनी ही काम करने के लिए. तो काम करने का मतलब ये नहीं कि अपने को आप बिल्कुल घसीटा कर दे. नो, इसका एक तरीका है. आपको कैसे बैठना है, उठना है. आप नीज का यूज हम कितना करते हैं? सारा तो कमर से झुक के बाल्टी उठा लेंगे. तो हाउ टू स्टैंड प्रॉपरली, हाउ टू यूज दीज जॉइंट्स, मसल्स, और इनको कैसे स्ट्रेंथनिंग, फ्लेक्सिबल बनाइए. तो योग इसमें आपको बहुत काम करेगा. तो योर बॉडी इज द ओनली मीडियम. आप कुछ भी हो, राइटर हो, फिल्म स्टार हो, कुछ भी हो, इज द ओनली मीडियम टू परफॉर्म योर duties. So first and prime duty being a good citizen to fit yourself. And I am thankful कि कुछ ऐसी चीजें गवर्नमेंट के थ्रू आई तो सही. This is the luckiest time for the physical education also कि आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, हम सब मिलके कर सकते हैं. अदरवाइज मेरी जो एक प्रॉब्लम है वो यही है कि आप क्या समझा रही हैं, क्या हम ये सब नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं. बट अनहेल्दी सिक पर्सन्स, क्या मैं बीमार नहीं पड़ती होंगी? पड़ती होंगी ना. लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आप को फटाफट, मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपको दे देती हूँ कि अनहेल्दी सिक पर्सन मेक अ सिक सोसाइटी. तो फैमिलीज वैसी बनेंगी. जब फैमिलीज वैसी बनेंगी तो आपका इकोनॉमिकल कंडीशंस कितनी पुअर हो जाती है उस फैमिली की, जरा सोच के देखिए. तो कीप योरसेल्फ फिट. तो कंक्लूजन, योग इटसेल्फ अ क्वालिटी लाइफ. योग, लोग कहते हैं ना, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इटसेल्फ अ क्वालिटी लाइफ. सो सर्व बेस्ट, fit and healthy for your family, for your society, for your nation, and it is a global chain. So sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, और कश्चित दुख भाग भवेत. ये तभी संभव हो सकेगा. ये कहना आसान है, बट करने में हम सबको कोशिश करनी है. सो कभी कभी बच्चे भी बनिए, कभी कभी फैमिली के साथ भी टाइम निकालिए, और कभी कभी ग्रुप में भी योगा करेंगे. एंड दिस इज नॉट एन एंड, this is an starting. कोरोना ने कुछ तो दिया, and this is your time. So your all education meaningless. कभी भी वो आपको डेवलप नहीं कर सकेंगी. वो केवल एक मेंटल एक्रोबैटिक्स, कलाकारियां बन के रह जाएगी अगर उस एजुकेशन में आपके अंदर एक फिजिकली फिट, मेंटली साउंड, इमोशनली बैलेंस्ड एंड सोशली वेल एडजस्टेड स्टूडेंट, प्यारा सा बच्चा, प्यारा सा सिटीजन अगर डेवलप नहीं किया. सो थैंक यू टू लिसन मी केयरफुली. एंड मुझे बियर किया इतनी देर, इसके लिए भी मैं थैंक यू बोलूंगी. एंड सरिता जी, मुझे लगता है शायद गलती नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी मैं माफी चाहूंगी कि मैं थोड़ा सा ये मैटर थोड़ा ज्यादा चला गया, क्योंकि जब दिस टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग और मुझे लगता है सभी बहुत एंजॉय किया होगा सभी ने इसको. बहुत ही अच्छा था, बहुत इंफॉर्मेटिव था, बहुत अच्छा था. हम सब ने बहुत एंजॉय किया. थैंक यू सो मच. Nivedita, please continue. And thank you so much, ma'am, for such fruitful session and making us aware about the importance of health and yoga in our daily lives. I would now request our principal, ma'am, to please say a few words. Before I thank everybody, those who have organized it, I was really impressed to see the way Professor Archana Chahal presented it. Very informative, and this is what we all should learn. और ये मैं अर्चना जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी,
मैं ये नहीं कहूंगी मैं बहुत हेल्दी हूँ, बहुत परफेक्ट हूँ, लेकिन मुझे बस एक बात अच्छी नहीं लगती है कि जब हमसे छोटे उम्र के लोग कहते हैं हम थक गए हैं, तो या बीमार तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं उनके लिए भी मुझे जरा सा दुख होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पास सब कुछ हो लेकिन अगर अच्छी हेल्थ नहीं है तो आप जीवन में किसी भी चीज का आनंद नहीं उठा सकते। तो मैं मेरे बहुत ही प्यारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स, मैं सबसे यही कहती हूँ कि अपने अंदर एक पॉजिटिव, जो आप बता रही थी कि एक पॉजिटिव एनर्जी लेके हम लोग चलें और लोगों के बारे में भी पॉजिटिव सोचें, अपने बारे में भी पॉजिटिव सोचें और अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। आपका लेक्चर बिल्कुल इसी मुद्दे पे था और बहुत ही अच्छा था। जो आपका टॉपिक था, योगा इज अ साइंटिफिक वे ऑफ इम्प्रूविंग आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, दिस वॉज अ परफेक्ट टॉपिक फॉर आवर जनरेशन। हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक था ये। हम डॉक्टर सरिता सिंह को इसके लिए थैंक यू बोलेंगे, इस टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर कुंदन सिंह फ्रॉम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, who has attended, joined our lecture. Thank you, sir. Thank you so much for joining. And I'm thankful to Dr. Sarita Singh always for organizing, motivating our students. और आप सबको, सबसे बड़ी बात है आप सबको इनवाइट करने के लिए, क्योंकि who knows better than a teacher कि हमारे जैसा जो हमारे बच्चे चाहते हैं सुनना और पढ़ना, उसी तरीके का कोई एक पर्सन बुलाया जाए और वो उन बच्चों को समझा सके, बता सके और उनको मोटिवेट कर सके। ये टीचर से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता है। और हम देख रहे हैं कि डॉक्टर सरिता सिंह का सिलेक्शन बहुत